Hello, my dear students. How are you all? Class 6. This is your Ratna Sagar publication book, Living English. And lesson name is In Father's Presence. It's a question answers with back exercise we are going to solve in this video. I have uploaded other chapters and poems video also on the channel. So if you would like to watch, you can go to the playlist and check that. For this one, you can subscribe the channel. If you want to watch my coming videos, you can press the bell icon and you can subscribe. For that, you can check the playlist. Before going to playlist, you can click on my icon, my photo icon. Then you will go to my channel and easily you will check a playlist for writing section, grammar and Ratna Sagar publication solution. So let's come to the video now. In this one, you have to tell about the tick mark. Tick the most appropriate option. So what is the most appropriate option here? Swaminathan had not touched his books because Swaminathan ने अपने बुक्स को टच भी नहीं किया था. क्यों नहीं किया था भाई उसने? He didn't like to study. उसको पढ़ना पसंद नहीं था. नहीं था उसको पढ़ना पसंद. The examinations were over. उसके examinations खत्म हो गए थे. बिल्कुल सही है. He had holidays. बिल्कुल उसकी holidays भी थी. All about तो सारे सही है. तो all about D is the correct option. Now come to second one. He expected to be contradicted any moment because he was not sure if the answer was correct. So B is the correct option. Next is here some answers are given here already. You have to frame its questions. आपको भी यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर्स गिवन है. इनके आपको क्वेश्चन बनाने हैं कि किस क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव फ्रेम्ड हियर. व्हाट डिड द डस्ट ऑन द टेबल एंड बुक्स शो टू स्वामीनाथन फादर. जो डस्ट थी टेबल पे और जो बुक्स पे थी उससे उसके फादर को क्या लगता है भी कि फादर स्वामी हैडेंट टच हिज बुक्स, कि स्वामीनाथन ने अपने बुक्स को टच ही नहीं किया है. सेकेंड क्वेश्चन आई फ्रेम्ड हियर. हाउ मच टाइम डिड स्वामी टेक टू क्लीन हिज टेबल एंड डस्ट हिज बुक्स. कितना टाइम लगा उसको? स्वामी टुक हाफ एन आवर टू क्लीन हिज टेबल एंड डस्ट हिज बुक्स. Third question, its answer is given. Father gave Swami a sum to do from his textbook. So what is the question? What assignment did father give Swami to do? And its answer is given here already. Now come to true and false. So what is given here first? Swami was not sure whether he had to add, subtract, multiply or divide. Obviously this is correct option because he was confused in the sum what to do, add, subtract, multiple or divide. So this is a true is given here. Next is the father thrashed Swami when he couldn't answer him. No, he didn't thrash. So this is false. Okay, so what is given? Father thrashed Swami when he couldn't answer him. So this is a false statement. Okay, he also threatened him. उसने उसका कहा ना, उसका जो ईयर होता है उसको वो जेंटली जो है वो ट्विस्ट करता है, तो मीन्स उसके कान को वो पकड़ लेता है. लेकिन इसने यहाँ पे क्या कहा कि स्वामी को उसने आंसर, अगर उसने आंसर नहीं दिया था तो क्या उसने क्या किया, उसने क्या उसको थ्रेस्ड किया? तो नहीं, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. सो दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज द फ्रैक्शंस वर इजी फॉर स्वामी टू डू. स्वामी के लिए फ्रैक्शंस करना क्या सही था? बिल्कुल नहीं, उसके तो डिफिकल्ट था. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. स्वामी डिसअपियर्ड. स्वामी जो वहां से गायब हो गया. एंड डिडंट गो टू द क्लब, और क्लब में नहीं गया. फॉल्स है. वो तो बाद में, पहले डिसअपियर हो लेकिन बाद में अपियर हो गया और उसके बाद वो क्लब में जाने के लिए रेडी भी हो गया. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर. Let's come to the question answers. The very first question is, half an hour later Swaminathan sat in his father's room in a chair. Half an hour के बाद स्वामीनाथन अपने फादर के रूम में बैठ जाता चेयर पे. Why was Swaminathan in his father's room? स्वामीनाथन अपने फादर के रूम में क्यों था भाई वहां पे? व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, और इसके बाद क्या हुआ? स्वामीनाथन सेट इन हिज फादर्स रूम इन अ चेयर. स्वामीनाथन अपने फादर के रूम में जाकर के चेयर पे बैठ जाता है. एज हिज फादर कॉल्ड हिम, क्योंकि भी उसके फादर ने उसको बुलाया था. देयरफॉर स्टडी, यहाँ पे पढ़ने के लिए. ही गेव हिम एन अर्थमेटिक सम टू सोल्व, और उसके फादर ने उसको यहाँ पे क्या दिया? एक सम दे दिया अर्थमेटिक का, जो कि उसको सोल्व करना था.
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, एवरी टाइम ही रीड इट, जितनी बार भी उस सम को पढ़ता, इट सीम्ड टू एक्वायर अ न्यू मीनिंग, हर बार उसको उसका नया मीनिंग सूझ जाता। What was स्वामीनाथन रीडिंग, स्वामीनाथन क्या रीड कर रहा था? What new things, what new meanings did he find, और कौन से न्यू मीनिंग्स उसके सामने आए भाई यहाँ पे? स्वामीनाथन वॉज रीडिंग द अर्थमेटिक सम अगेन एंड अगेन, वो बार बार उसी अर्थमेटिक सम को पढ़ रहा था जो उसके फादर ने उसको दिया था। एज ही वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग, क्योंकि उसको उसका मीनिंग तो देखो समझ आ नहीं रहा था। ही हैड नो आइडिया अबाउट इट, उसको इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था कि उसको हाउ टू सॉल्व इट, उसको कैसे सॉल्व करे। ही फाउंड न्यू मीनिंग्स अबाउट मैंगोज प्राइस, मैंगो के प्राइस के बारे में उसको न्यू आइडियाज आ रहे थे। इधर देवर राइप और नॉट, कि वो पके हुए मैंगोज थे या फिर कच्चे मैंगोज थे, तो उसके बारे में उसके माइंड में ये सारे नए नए मीनिंग्स आते रहे। थर्ड क्वेश्चन, स्वामीनाथन वेटेड विद इंटरेस्ट फॉर द मिरेकल टू हैपन, जो स्वामीनाथन उसने वेट किया, उसका इंटरेस्ट था कि कुछ ना कुछ मिरेकल होगा, कोई मैजिक होगा यहाँ पर जिससे कि सम सॉल्व हो जाएगा। व्हाट वाज द मिरेकल, वो क्या मिरेकल था, क्या मैजिक था? डिड स्वामीनाथन थिंक, क्या स्वामीनाथन ने सोचा उस मिरेकल के बारे में कि जो होने वाला है, क्या सोचा उसने? स्वामी वॉज अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, सबको पता है भाई स्वामी जो है वो सोल्व करने के लिए, वो जो क्वेश्चन दिया था उसके फादर ने उसको सोल्व करने के लिए अनेबल था, वो नहीं कर पा रहा था। सो फादर फोर्स्ड हिम, तो उसके फादर ने उसको फोर्स किया टू गिव द आंसर, कि किसी भी तरह से हो तुम्हें इसका आंसर देना है। एनी हाउ, किसी भी तरह से हो भाई इसका आंसर दो, जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं ना भाई मुझे नहीं पता, मुझे इस सम का आंसर चाहिए। इट वॉज मिरेकल फॉर हिम, और ये तो उसके लिए मिरेकल था। कहते तो मैजिक वाली बात होगी अगर मैं इसको सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि मुझे तो आंसर पता ही नहीं है। एज ही डिडंट नो द आंसर, क्योंकि उसको आंसर तो पता ही नहीं था। स्वामी थॉट द मिरेकल, स्वामी जो वो सोचता कि जो मिरेकल है वुड नॉट हैपन, नहीं होने वाला है, कोई भी मैजिक नहीं होने वाला है। एज ही कुडंट सोल्व द सम इज ओन, क्योंकि अपने आप से तो उस सम को सोल्व कर ही नहीं सकता था, तो कैसे मैजिक हो जाता, कैसे मिरेकल हो जाता जब उसको सम ही नहीं आता था। वुड यू लाइक टू कम विद मी टू द क्लब बॉय, अरे बॉय, उसके फादर ने कहा कि बेटा बॉय क्या तुम क्लब में आना पसंद करोगे मेरे साथ? ही आज, उसने पूछा, भैया किसने पूछा? होम डिड ही आस्क, ये किसने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा? लेट्स कम, हु वाज दिस? स्वामीज फादर आस्क्ड इट टू स्वामी, स्वामी के फादर ने ये स्वामी से पूछा। एज हिज फादर फेल्ट सॉरी, क्योंकि उसके फादर जो है वो सॉरी फील कर रहे थे फॉर ट्रबलिंग हिम, उसको सारा दिन प्रॉब्लम में डालने की वजह से, क्योंकि सारा दिन सारी आफ्टरनून वो लगा रहा बाय गिविंग हिम अ सम, उसको उसने सम दे दिया था। बट नाउ ही वुड लाइक टू मेक हिम हैप्पी, क्योंकि सारा दिन उसको एक सम दिया था, उसे वो सारा दिन वो सम ही सोल्व नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, ही वुड लाइक टू मेक हिम हैप्पी। अब उसके फादर उसको थोड़ा सा खुश करना चाहते, जैसे आपके पेरेंट्स करते हैं ना कि पहले वो प्रेशराइज करते कि नहीं ये लर्न करो, अभी करके सुनाना है, अभी लिख के दिखाना है, सारी मिस्टेक्स करेक्ट करनी है, और फिर सोचते कि नहीं भी बच्चा प्रेशराइज हो गया, चलो अब उसको थोड़ा खुश करते हैं बच्चे को। तो ऐसे यहाँ पर इसके फादर भी उसको हैप्पी करने के लिए लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज गिवन है स्वामीनाथन कंपेयर्स हिज फ्रेंड्स विद द पीपल इन द सम, जो स्वामीनाथन वो अपने फ्रेंड्स को कंपेयर करता है उन लोगों के साथ जो कि सम के अंदर होते हैं। ओके, व्हाट डज दैट टेल यू, इससे आपको क्या पता चलता है उसके दोनों फ्रेंड्स के बारे में, और आपने यहाँ पर नोट डाउन करने हैं यहाँ पे। सो द नेम ऑफ द फ्रेंड क्या है यहाँ पर? शंकर, और सेकंड है कृष्णा। कंपेयर्ड विद, उसने सम में किसके साथ कंपेयर किया? शंकर को कंपेयर किया रामा के साथ, और कृष्णा को कंपेयर किया यहाँ पर पी के साथ। ओके, व्हाट इट टेल्स यू अबाउट द फ्रेंड, इससे फ्रेंड के क्या फीचर पता चलते हैं? यहाँ पर जो शंकर है उसका फ्रेंड वो डिटर्मिन्ड है बिल्कुल, और कृष्णा जो है कुडंट काउंट, वो काउंट नहीं कर सकता, उसके लिए सारी चीजें अनकाउंटेबल होती हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next is write the answer. How did father know स्वामीनाथन had not been studying at all? उसके फादर को कैसे पता चला कि स्वामीनाथन ने स्टडी नहीं की है? What did father do about it? और उसके फादर ने इसके बारे में क्या किया? फादर ने क्या किया जब उसको पता चला कि उसने तो स्टडी नहीं किया है? और उसको पता कैसे चला कि स्टडी नहीं की है? स्वामीज फादर न्यू दैट स्वामी हैड नॉट बीन स्टडिंग, स्वामी के फादर को पता चल गया कि वो स्टडी नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? एट ऑल,
बिकॉज ही नोटिस्ड टेबल एंड बुक्स फुल ऑफ डस्ट, क्योंकि उसके फादर ने नोटिस की, उसके फादर ने देख लिया कि टेबल के ऊपर भी डस्ट है और बुक्स के ऊपर भी डस्ट है और वहां पर स्पाइडर के वेब भी लगे हुए हैं, मकड़ी के जाले भी लगे हुए हैं। अगर ऐसा है तो इट मीन्स बच्चे ने बुक्स को टच भी नहीं किया। ओके, एंड व्हाट डिड फादर डू अबाउट इट, फादर ने इसके बारे में क्या किया, फादर असाइंड अ ड्यूटी टू हिम टू क्लीन द डस्ट। अब उसके फादर ने उसको क्या कहता है, यू कैन ऐड वन मोर लाइन हियर दैट फादर, व्हाट डिड फादर डू अबाउट इट, फादर असाइन हिम ड्यूटी टू क्लीन द डस्ट एंड वेब from the books. Okay, next is there, what does Swaminathan think of when he reads the sum? What does Swaminathan think, स्वामीनाथन ने क्या सोचा of when he reads the sum, जब वो sum को read करता है तो क्या सोचता है यहाँ पर, why do you think he thinks of those things, वो क्यों इन चीजों के बारे में सोचता है, आप क्या सोचते हैं यहाँ पर, when Swami reads द सम, जब वो सम को रीड करता है एक फियरफुल इमेज उसके मन में क्रिएट हो जाती है, उसके माइंड में क्रिएट हो जाती है, उसके माइंड में एक डर की इमेज बन जाती है। ही थिंक्स अबाउट रामा एंड कृष्णा, वो रामा और कृष्णा के बारे में सोचने लग जाता है, एंड अबाउट द प्राइस ऑफ मैंगोज, और मैंगोज के प्राइस के बारे में सोचता है। हिज माउथ वॉज वाटर्ड विद द थॉट ऑफ मैंगोज, और मैंगोज के बारे में सोच के उसके मुंह में पानी आ जाता है। What does स्वामीनाथन think about fractions and why? फ्रैक्शंस के बारे में क्या सोचता है, फ्रैक्शंस के बारे में वो सोचता है that it is a boring topic and requires a lot of thinking to solve it. The next question, Swaminathan viewed this question as a gross breach of promise. ग्रॉस मीन्स ये टोटल और कंप्लीट, ब्रीच मीन्स ब्रेक, मीन्स कोई टोटली अपने प्रॉमिस को ब्रेक करे। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या था, किसने क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था, व्हाट वाज द प्रॉमिस हिज फादर वाज ब्रेकिंग, और वो कौन सा प्रॉमिस था जो उसके फादर ब्रेक कर रहे थे। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय हिज फादर, जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो उसके फादर ने पूछा था बिल्कुल बिगिनिंग में चैप्टर के, अबाउट द टचिंग ऑफ हिज बुक्स, कि तुमने अपने बुक्स को टचिंग, अपने बुक्स को छू कर भी नहीं देखा, आपने टच भी नहीं किया, इट मीन्स इन पे डस्ट है, ये फुल ऑफ डस्ट है, इट शोज दैट यू हैवंट टच्ड योर बुक्स। सो उसके बुक्स पर डस्ट और वहां पर टेबल पे वेब्स देख करके उसके फादर ने क्या कहा कि तुमने तो अपने बुक्स को टच भी नहीं कर रखा है। हिज बुक्स वर फुल ऑफ डस्ट, उसकी जो बुक्स थी वो डस्ट से भरी पड़ी थी। हिज फादर प्रॉमिस, अभी एक प्रॉमिस किसने किया था, क्या किया था, उसके फादर ने प्रॉमिस किया था दैट ही नीडंट रीड, कि तुम्हें जरूरत ही नहीं है पढ़ने की आफ्टर हिज एग्जामिनेशन, उससे एग्जामिनेशन के बाद उसके फादर ने उसको कहा था कि जब तुम्हारे एग्जामिनेशन ओवर हो जाएंगे तो उसके बाद तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट नाउ ही वाज ब्रेकिंग दिस प्रॉमिस, लेकिन अब जो उसके फादर उस प्रॉमिस को तोड़ रहे थे बाय सेइंग हिम टू स्टडी, उसको पढ़ने का बोल करके। ओके, सो मीन्स टू से जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं आपको बोलते हैं कि बेटा एग्जामिनेशंस आ गए, जैसे अब सितंबर एग्जाम्स आ गए हैं, मिड टर्म एग्जाम्स आ गए, फिर फाइनल एग्जाम्स आएंगे, तो आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि बेटा एग्जाम्स चल रहे हैं, ठीक है, अब एग्जाम्स के टाइम में बिल्कुल मन लगा के पढ़ लो, उसके बाद फिर बेशक तुम टीवी देखना, तुम मोबाइल चेक करना, ठीक है, तुम कुछ भी करना, बट अभी पढ़ लो, उसके बाद तुम कभी मत पढ़ना। ऐसा बोलते हैं पेरेंट्स, बहुत के पेरेंट्स बोलते हैं ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ पर इसके फादर भी बोलते हैं कि भाई तुम्हारे एग्जामिनेशन हो जाएंगे ना, उसके बाद मत पढ़ना। तो अब कहता है कि मेरे फादर अपना प्रॉमिस तोड़ रहे थे, उसने कहा था एग्जामिनेशन होने के बाद मत पढ़ना, लेकिन अब वो फिर से कह रहे हैं कि पढ़ना शुरू कर दो। सेकेंड क्वेश्चन, इट वॉज अ प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट, ये तो बिल्कुल आसान था इसके बाद, ये तो बिल्कुल इजी था इसके बाद। सो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, व्हाट डज अ प्लेन सेलिंग मीन्स हियर, प्लेन सेलिंग का मीन्स यहाँ पे क्या है, इट मीन्स द सम वाज वेरी सिंपल टू सोल्व, भाई ये तो सम बहुत सिंपल था। अब डिड ही गो थ्रू द सम इजीली आफ्टर दैट, क्या उसके बाद वो सम को अच्छे से पढ़ पाया, बिल्कुल, यस ही सोल्व द सम इजीली आफ्टर दैट। और ये जो आपकी लाइन है बिल्कुल चैप्टर की एंडिंग लाइन्स है, when he was able to solve the sum. The whole brood of Ramas and Krishna, जो सारा ग्रुप था, ब्रूड मीन्स यहाँ पे ग्रुप या फैमिली, जो फैमिली थी या जो ग्रुप था रामाज और कृष्णा की, विद देयर एंडलेस ट्रांजेक्शन, और जो उनकी एंडलेस ट्रांजेक्शन थी जो बिल्कुल अंडरस्टैंड ही नहीं हो पा रही थी, वर गेटिंग डिस्गस्टिंग, वो बहुत गंदी बहुत भद्दी लग रही थी उसको। क्यों भाई, क्यों लग रही थी यहाँ पर,
दिस लाइन, ये जो लाइन आपको क्या शो करती है, दिस लाइन शोज दैट द सम वाज वेरी डिफिकल्ट, जो सम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था टू अंडरस्टैंड, समझने में, फॉर हिम, उसके लिए। राम एंड कृष्णा वर डीलिंग इन एन अगली मैनर, जो राम और कृष्णा थे वो बहुत ही अगली से मैनर में डीलिंग कर रहे थे, मतलब उसको नहीं समझ आ रहा था वो कैसे डील कर रहे हैं, कितने रुपीज के उसने परचेज किए, कितने के वो सेल करना चाहते, उसको नहीं समझ आ रहा था। एज ही वॉज कंफ्यूज, क्योंकि वो कंफ्यूज था, वर द मैंगोज राइप, क्या मैंगोज राइप है या नहीं है, तो इस क्वेश्चन को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। So it was all about your solution. Thank you so much for watching the video. Have a marvelous day, everybody.